Hello students, here in this audio video I am going to explain production possibility curve and economic problems. Basically, production possibility curve can be effectively used to explain the economic problems of what to produce. जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस उसको पीपीसी मॉडल से समझा सकते हैं. Central problems solved by this curve are allocation of resources, what to produce and how much to produce, 2 full load utilization of resources, 3 economic efficiency and 4 economic growth. तो allocation of resources, what to produce and how much to produce. What to produce, all points on the production possibility curve, एक जो PPC curve होता है, shows what to produce and how much to produce. All points on the curve are efficient and attainable. एक कर्व पे जो भी पॉइंट है वो सब के सब अटेनेबल है. जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ मैं आपको इधर से अलग से बना के समझाता हूँ. हाँ, ये देखिए, सपोज कीजिए ये पीपीसी कर्व है, इसका नाम क्या था, पीपी डैश की पीपीयू. पीपी डैश economic problem production possibility curve. हाँ, देखिए इधर, तो इसमें क्या लिख रहा था कि ग्राफ का नाम है, ग्राफ का नाम है पॉइंट ऑल द प्रोडक्शन कर्व. यहाँ पीपी डैश है, तो पीपी डैश जब हम कहेंगे तो हमारा है पेशेंस. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो इसमें इस पे हम लोग थे. हाँ, इस ग्राफ पे मैं आपको क्या दिखा रहा था कि ये पीपी डैश है. तो इसमें सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ये सपोज करो ए है, ये पॉइंट है, ये सपोज करो बी है, ये पॉइंट है सी है. तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से देखिए क्या लिखा था. एक मिनट, हाँ इधर देखिए, इसमें लिखा था कि PP dash shows what to produce and how much to produce. All points on the curve are efficient and attainable. For example, if the economy chooses point B as the production, the combination then 2 units of good X and 18 units of good Y can be produced. On the other hand, if the economy is operating at point C, then 3 units of good X and 15 units of good Y are produced. Thus, depending upon the nation's policy, it can choose any point on the curve, which will solve the problem of what to produce and how much to produce. हाँ, अब इसको देखिए कैसे समझेंगे हम. देखिए, हाँ इस ग्राफ पे थे हम लोग.
अब सपोज कीजिए पहले इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रहा था यहाँ, इसका मतलब क्या था, इकोनॉमी में वाई का रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जब वाई का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इकोनॉमी में तो तब तो ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट ए पे वाई का प्रोडक्शन कम है, एक्स का प्रोडक्शन वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक्स का कम है, वाई हैज़ मोर प्रोडक्शन एंड एक्स हैज़ लेसर प्रोडक्शन. बट इफ़ यू चूज this combination B, that means almost equal amount of Y and equal amount of X's are being produced, that is needed in the economy, that both of them should be produced. तो ये what to produce का solution हो रहा है कि नहीं हो रहा. और अगर ये C प्रोडक्शन चुनेंगे तो इसका मतलब हो रहा है कि इकोनॉमी में X गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, Y का कम है, so economy is needed to produce more of good X and lesser of Y. So either of the three combination, or even this can be a combination, this can be a combination, this can be a combination, this can also be a combination. When ये जो combination चुना जाएगा, that means all the goods or services, all the resources are sacrificed for X, getting X, and Y is 0. When this combination is selected, that means X is not needed, only Y product is needed. So there are so many combinations that on the same PPC curve can be selected according to the demand, what product is needed more, what is less, or both are needed in equal quantity, then that combination should be selected. So what to produce problem is solved through PPC model. How to produce, what technology? It relates to technique to be used in production. The problem to choose is to choose that technique of production which will maximize production or minimize cost. हाँ, मतलब किस टेक्निक से प्रोडक्शन करें जिससे कि क्या हो, वो टेक्निक चुने जिससे कि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, आउटपुट बढ़े और कॉस्ट कम हो. ओनली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी शुड बी चूजन. तो जो अच्छा टेक्नोलॉजी हो वो चुने. ऑल पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इम्प्लाई दैट द मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड. हाँ, लेकिन ये बात जान लेना कि वो जो रिसोर्स एक पीपीसी पे भी हम लोगों ने यहाँ देखा ना, ये क्या देखा इधर कि ये जो है वो, इसमें देखिए ये जो मॉडल है, चाहे ये मॉडल चुना जाए या ये चुना जाए या ये चुना जाए, और दिस और दिस और दिस, ऑल कैन बी प्रोड्यूस्ड with the same resources and technology. What amount of things, which one is more needed and which one is lesser needed, that depends upon you. So here what it is saying, it refers to technique to be used in production. ओनली ऐसे एक पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के देखिए, ओनली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी शुड बी चोजन, जो अच्छा हो, क्योंकि आप लोग कोई भी पॉइंट अटेंड कर सकते हो उस ABCDEF जो भी पॉइंट है उस PPC पे, इसलिए सिचुएशंस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करके जो जितना X और Y बोथ देगा, जो उस टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए कम से कम खर्चे में, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे. फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी प्रोडक्ट टेक्स प्लेस. हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये नहीं बताता है कि जो ये प्रोडक्ट बन के रेडी होंगे वो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी. सिर्फ PPC पे कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट A हो, पॉइंट B हो, पॉइंट C हो, भी जो मैं दिखा रहा था आपको ग्राफ पे, इट हैज़ टू बी एनालाइज्ड विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज डिमांडिंग विच गुड. If the rich sections of the society are getting more goods, then it shows unequal distribution of income and wealth in an economy. If poor people are getting more goods, then it implies more equitable distribution of income. हाँ, लेकिन ये PPC से पता लग जाएगा कि जो दो अल्टरनेटिव गुड्स प्रोड्यूस हो रहे X एंड Y, तो X क्या रिचर सेक्शन का गुड्स है, Y क्या पुअर सेक्शन के गुड्स है. तो अगर X का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स सोसाइटी X कॉस्टली गुड्स है और वो रिच सेक्शंस के लोग खरीदते हैं. इट मीन्स रिच पीपल आर एबल टू फुलफिल देयर मोर डिमांड्स, बट पुअर्स आर नॉट, बिकॉज दे आर द कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट. And if product Y is being more demanded than more output than good X, it means poorers are also given opportunity fulfilling their demand, and their product at cheaper rates are being sold in the economy. Okay. Full utilization of resources. This problem is solved by all points on the production possibility curve. Each point on the curve PP dash shows all fully. हाँ, सही बात है. हमने जो देखा कॉम्बिनेशन A B C, उस सभी में
वो रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, और आपको एक्स और वाई का दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो उस बजट में उस रिसोर्सेज में फुल यूटिलाइज करके पॉसिबल है वो दिखाता है. एनी पॉइंट इन साइड द कर्व लाइक पॉइंट एफ shows that resources are unemployed or underutilized or are lying idle. In other words, resources are not being used efficiently. By increasing the use of resources, production can be increased. अब देखो इसको मैं समझाता हूँ ग्राफ पे जाकर के. देखिए आपका इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, फिर से पहले ग्राफ ड्रॉ करूँगा. हाँ देखिए ये पीपीसी ग्राफ है, ये वाई एक्स एक्सिस पे यहाँ वाई का प्रोडक्शन जीरो, एक्स का प्रोडक्शन जीरो है, यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन जीरो है. तो ये जो 5 कॉम्बिनेशन मैं अंदर में लिया कि ये सब कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन हो सकता है. ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई. अब सपोज कीजिए प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं, इधर जो एफ है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्स फुली नहीं यूटिलाइज हो रहे, क्योंकि अगर रिसोर्स फुली आउटपुट होते तो या तो ये प्रोडक्शन होता, या ये वाला प्रोडक्शन होता, या ये प्रोडक्शन होता, या ये प्रोडक्शन होता, या ये या ये या ये. और अगर रिसोर्सेस ओवर यूटिलाइज्ड होंगे तो इसका मतलब होता है कि वो इधर कहीं पॉइंट होगा, इधर पॉइंट हो जाएगा, एक नया ग्राफ से वो गुजरेगा. तो उस रिसोर्सेस उस पीपीसी मॉडल के हिसाब से तो ऐसा होगा नहीं. तो ना ही अंडर यूटिलाइज्ड होंगे, अगर अंडर यूटिलाइज्ड होंगे तो प्रोडक्शन कहीं नीचे होगा, अगर ओवर यूटिलाइज्ड होंगे तो उस पीपीसी के बाहर कहीं ज़्यादा होगा. तो ये हो गया. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन को ये पीपीसी ग्राफ ही दिखलाता है. और उस फुल यूटिलाइजेशन में आप कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए, इस कॉम्बिनेशन ये 4 5 6 कॉम्बिनेशन जो है उसमें से कोई भी सेट आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो इधर क्या था, हाँ, बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन कैन बी. हाँ सही बात है, अगर आप रिसोर्सेज बढ़ा दोगे तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है. एग्जाम्पल इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मशीन्स एंड प्लांट्स आर अंडर यूटिलाइज्ड. इंडिया में क्या ज़्यादातर मशीन और फैक्ट्रीज अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ हड़ताल, स्ट्राइक एक्सेट्रा ज़्यादा है, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं. अनदर एग्जाम्पल इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. हाँ, आदमी का भी कम यूटिलाइज हो सकता है. मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया विल लीड टू अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी. बिल्कुल सही बात. अगर सारे ह्यूमन बीइंग जो 18 से 60 साल के बीच में हैं, अगर वो वर्किंग पॉपुलेशन बन जाए तो पीपीसी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा. लेकिन अगर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, तो बिलो कैपेसिटी प्रोडक्शन होगा. दिस विल बी ट्रू बिकॉज पीपीसी इज ड्रॉन ऑन द एजम्पशंस. ये मानते हुए ड्रॉ किया जाता है पीपीसी कर्व कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. अगर रिसोर्सेज पूरे काम में लाया जाए, कोई बेकार ना हो. When there is massive unemployment, it will reduce production possibilities and lead to a point inside PPC, जो नीचे में हमने F आपको दिखाया था. Showing under utilization resources. इसका मतलब कि रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं. Economic efficiency. All points on the PPC are economically efficient in production. सही बात है. वो जो A, B, C, D, E, F ये जो सारे मैंने आपको इधर कॉम्बिनेशन दिखाया था, ये देखिए इसमें ए बी सी डी ई कोई भी सारे पॉइंट है, सब पे अगर प्रोडक्शन ठीक हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी ठीक ढंग से काम कर रही है, नहीं तो नहीं. ऑल पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पी पी डैश आर इकोनॉमिकली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन. द एम ऑफ एन इकोनॉमी विच वांट्स टू बी इकोनॉमिकली एफिशिएंट. किसी भी इकोनॉमी का जो लक्ष्य है कि वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो, इज़ टू बी ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि वो पीपीसी के हिसाब से प्रोडक्शन करे. एनी पॉइंट बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कर्व इज अनअटेनेबल. और क्योंकि उसके बाहर तो हम कुछ अटेन कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू पीपीसी एजम्पशंस. इकोनॉमिक ग्रोथ विथ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज और एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज. हाँ, हो सकता है कि नए टाइप का ऐसा मटेरियल आया है जो कम में ज़्यादा आउटपुट देता है, या टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा हो गया है. द इकोनॉमी कैन, मशीन्स अब रिनोवेट हो गए हैं. द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड एक्स और मोर गुड वाई और मोर बोथ ऑफ गुड्स विद द सेम अवेलेबल रिसोर्सेज. A summary of economic problems solved by a production possibility curve is given in table 1.5. वो तो दिया हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उसका पीपीसी
पीपीसी इंडिकेट्स थ्री कंसेप्ट्स नेमली स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी। यानी पीपीसी में क्या दिखाता है कि मटेरियल की स्कार्सिटी है, इसलिए चॉइस क्या करना है, और फिर एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 1.5 टेबल है। ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी पर रहेगा, उस ग्राफ पर ही रहेंगे। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज वो भी पीपीसी के ग्राफ पर ही रहेंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो भी पीपीसी के ग्राफ पर रहेंगे। इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा तो उस पीपीसी से राइटवर्ड साइड में बाहर में न्यू ग्राफ बनेगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी में। अब इसके बाद ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, चैप्टर का रिवीजन है। इस तरह से चैप्टर 1 का जो है व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इसका ये सब पॉइंट देखते चलिए। सारा समरी दिया हुआ है, जो हम लोग पढ़े उसका एक समरी है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चंस हैं जो आप इतना सारे रीडिंग करने के बाद, सब चैप्टर पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे करने का। हम भी बाद में इसको डिस्कशन करेंगे, बट अभी जो हम लोगों ने इसको समझा है आप कोशिश करो इससे खुद करने की। एमसीक्यू का आंसर्स भी आपके पास है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए हुए हैं। हाँ, ये सबको एक एक करके वीडियो को स्टिल करके चीज़ को पढ़े समझे, तो वीडियो को आगे बढ़ने दे। मैं धीरे धीरे इसको आगे ले जा रहा हूँ। कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 का ख़त्म हो गया। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जो बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।